Welcome back to Make Mechatronics. So in last video we made this project proximity alarm. Okay, in this project हमने एक HCR SR04 which is ultrasonic sensor हमने उसको interface किया था Arduino के साथ. We measured the distance from the ultrasonic sensor and we made a proximity alarm. What does this do? It will sound the buzzer and the red LED if the object comes near, if the object distance is less than 25 centimeter. ओके तो कोई भी चीज़ अगर प्रॉक्सिमिटी में आती है तो ये बजर एंड एलईडी को साउंड कर देगा. एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द 25 and 50 centimeter, it will light up yellow LED, which is red and green LED together. And then if the object is the object distance is greater than 50 centimeter, then the no buzzer will sound and the LED light will be green. Okay, that was for the last video. इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यही अल्ट्रासाउंड सेंसर यूज़ करेंगे. सो लेट्स कॉपी दिस. यही अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर हम एक अल्ट्रासोनिक पियानो बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी असम. एंड वी आर गोइंग टू फिक्स दैट अनोइंग बजर साउंड ऑल्सो यूजिंग द ट्यून फंक्शन ऑफ द आर्डिनो. टोन फंक्शन ऑफ द आर्डिनो, नॉट ट्यून, टोन फंक्शन ऑफ द आर्डिनो. ठीक है, सो लेट्स मेक आवर टुडेज प्रोजेक्ट. Okay, so everything is visible. Okay, let's start. We'll take Arduino Uno 3 and okay, no, we have copied the project, so we don't need anything Arduino and all. Wait, we just need to paste the project. Just give it a bit of time to get settled. तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना वो थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए. ओके, इट्स रेडी. ठीक है, तो हमें क्या नहीं चाहिए इसमें. वी डोंट नीड द एलईडी. लेट्स डिलीट द एलईडी पार्ट. LED part is gone. In the code also LED part is not needed, and in this we need to connect the buzzer to a PWM output which is pin 6. ठीक है, because हमें buzzer को टोन फंक्शन यूज़ करना है. टोन फंक्शन यूजेस PWM, that's why buzzer को pin 6 से कनेक्ट करना है. इतना चेंज करना था इसमें. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू रिमूव द LED pin mode and duration distance वाला फंक्शन we still need distance function. ठीक है, तो we will not delete that, just इसको delete कर देते हैं. ओके, रेडी. यस, फर्स्ट टोन फंक्शन होता क्या है, काम कर रहा है. सो टोन फंक्शन इज दिस टोन. what do you give in this function? First you give buzz pin, means which pin the speaker or the buzzer is connected to. ठीक है, then you give the frequency control. frequency देते हैं. frequency is what, let's say 2400, means 2400 hertz. then you give the time is 400 milliseconds. एक तरीका ये होता है. Still irritating. Okay, still irritating. So 2400 is still irritating. Let's switch it to 5000 hertz. It sounds like a school bell alarm, right? Yes. We'll go and do some, and this is the one way to use the tone function. Another way is to not use this duration and just give a delay of say 1 second is a lot, 500 millisecond, and then
no tone. No tone is a function in which you don't write anything, just write no tone. Then again delay of 500 milliseconds. Okay, no need for this because code has error, no tone. Error, few arguments to the function, no tone, no declared here. So no tone also needs arguments. Let's see. See, this kind of doubt you can solve using the no tone function. If I write no tone, see no tone description stops the generation of square wave triggered by tone function. Okay, so note, okay, pin number you have to give. Okay, we need to give the pin number. So buzz pin we have to give. Okay, that was irritating enough. We can't do anything to reduce the sound, can we? Can we? I don't think so. Yes. So we have to do something. Stop the simulation. Okay. So what will be our project? We have to decide a starting distance. अभी हमें क्या करना है? हमें distance के according ये piano कैसे बजेगा? ठीक है? तो just let me disconnect this wire and then start the simulation. भी कैसे बजेगा? जब अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐसे ओपन होगा, ओके, देन आई विल डू समथिंग लाइक दिस 1 2 1 1 1 2. As I go farther, the frequency should increase, and as I go, closer, the frequency should decrease. So the lowest frequency I want, I have to set that lower frequency, and the highest frequency I have to set that highest frequency. Okay, so करना क्या है इसमें, हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक जाना है. ओके, एज एंड वो कैसे होगा, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस डिक्रीज करूँगा जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए. इजंट इट? ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो कैसे करेंगे इसको? सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. समझ लो कि हियर वी हैव व्हाट, here we have 38, so let's start with 40 centimeter. 40 centimeter is good. So 40 centimeter से लेकर our highest, the end limit would be suppose say 320 centimeter. So from 40 centimeter से लेके 320 centimeter तक हमारा distance का range होगा. ठीक है? What will be the range of our frequency? तो उसके लिए थोड़ा सा जाके रिसर्च करते हैं. Let's research piano frequency range. So it is from 27.5 Hz to 4186 Hz. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हो जाएगा. So these are very weird values. Okay, so just give me 2 minutes using that straight line. Okay, ठीक है, या इस बार हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे. इस बार we would use something new. I'll show you something called a map function. ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है. ओके, मैप फंक्शन, Arduino, something called a map function. अब ये मैप फंक्शन क्या करता है, दो डिफरेंट रेंजेस को मैप करता है. अभी हमारे पास एक डिस्टेंस का रेंज है विच इज़ फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर. ओके, एंड वी हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 27.5 हर्ट्ज टू 4168 हर्ट्ज. तो ये क्या करेगा, ये एक मैप फंक्शन में क्या होगा कि मैप फंक्शन एक काइंड ऑफ इंटरनल एक फार्मूला बना लेता है जिसमें ये
लीनियर मैपिंग कर देता है। मतलब जब हम 40 सेंटीमीटर देंगे तो 27.5 हर्ट्ज प्ले होगा। जब हम 320 सेंटीमीटर देंगे तो 4100 जितना भी था वो वाला फ्रिक्वेंसी प्ले होगा। ओके, इन बिटवीन अगर हम हाफ पे आएंगे तो उसका भी हाफ प्ले होगा। मतलब अगर 320 और 40 के बीच का हाफ कितना होता है, और 20 एंड देन 20 अगेन, सो 280। 280 का हाफ कितना होता है, 280 का हाफ होता है 140। सो 40 + 140 180। जब से हम लोग 180 सेंटीमीटर में आएंगे, वैसे ही 27 और 4000 के बीच में जो जितना भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 समथिंग हर्ट्ज होगा वो वाला फ्रिक्वेंसी प्ले होगा। टू गिव अन लीनियर मैपिंग। ठीक है, जैसे से हम लोग फ्रिक्वेंसी पर, जैसे से हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, वैसे से एक्जैक्टली लीनियरली फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड उसके लिए हमें खुद कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं मैप फंक्शन को, देखो। Remaps a number from one range to another, that is a value from low would get mapped to low, a value to a value of from high and to high, values in between to the values in between, etc. ठीक है, note that lower bounds of either range may be larger or smaller than the upper bounds, so map function may be used to reverse a range of numbers. For example, y is equals to map x comma 1 50 51. This function also handles negative number well, so that is example. अब ये क्या है, y is equals to x। यहाँ पे जो ये 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर, ये है रेंज। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से सिंटैक्स। ये फंक्शन जो है, ये मैप फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू क्या करेगा, ये देखो, ये फ्रॉम लो टू लो एंड ये फ्रॉम हाई टू हाई। ये फ्रॉम लो टू लो हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, फ्रॉम लो टू लो हमारा एक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये टू लो और टू हाई क्या होगा, हमारा टारगेट रेंज होगा, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, तो टू लो में क्या डालेंगे, 27.5 डालेंगे, एंड टू हाई में क्या डालेंगे, 4000 वाला फ्रीक्वेंसी डालेंगे। ओके, एंड ये वैल्यू की जगह पे वो वेरिएबल आएगा जो हमारा एक्स वैल्यू दे रहा है मैप फंक्शन को। ये मैपिंग तो हो जाएगी ये 4 वैल्यू से, बट मैपिंग के बाद हमें कैलकुलेट भी तो करना है ना वैल्यू। कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू एक्स वैल्यू दे रही है, मतलब हमारा डिस्टेंस अंडरस्कोर सेंटीमीटर वाला जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू की जगह पे आएगा, एंड देन हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएबल होगा वो यहाँ पे वाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, लेट्स यूज दिस, एंड पहले इसको यूज़ करते हैं, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इससे हमारा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो हम ये वाला नोट ऑन वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, हम जस्ट 100, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखूँगा FREQ, ये वेरिएबल में ऊपर इंटीजर FREQ, इट्स एन इंटीजर, यस। सो मैप वैल्यू क्या होगी, FREQ इज इक्वल्स टू मैप, किसको मैप करना है, डिस्टेंस अंडरस्कोर सेंटीमीटर को मैप करना है। फ्रॉम लो क्या है हमारा, तो हमारा 40 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक है, 320 सेंटीमीटर तक। एंड टू लो क्या है हमारा, 27 हर्ट्ज से लेकर हमारा, वैसे 27 हर्ट्ज से लेकर 4100 कितना था वो, 186 हर्ट्ज, 186 हर्ट्ज तक है। ओके, तो ये क्या करेगा, पहले मैप फंक्शन दो काम करेगा। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा 40,320 से 40,27 से 320,4186 तक। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर उस स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट करके डिस्टेंस देंगे उसको, तो डिस्टेंस देखेगा कि डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, डिस्टेंस यहाँ आ रहा है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहाँ आ रहा है,
डिस्टेंस आ रहा है 42, तो 42 का 42 पे देखेगा, 42 पे वाई वैल्यू क्या है सर, 42 के एक्स पे वाई वैल्यू क्या है यहाँ पे, अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू दे देगा, कहाँ दे देगा, फ्रीक्वेंसी को दे देगा, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी में सेव हो जाएगी, या फिर वही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग टोन में प्ले करेंगे, ठीक है। ये दिस वॉज द वर्क फॉर मैप फंक्शन। अब ये वैल्यू हमें, अब ये सब हमें खुद करना पड़ता, जो कि एक फंक्शन से हमें एक फंक्शन यूज़ करके हमारा सारा काम होगा। यू कैन यूज़ दिस मैप फंक्शन इन ऑल द अर्लियर कोड्स जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट किया है, ठीक है, गुड। So yeah, code is complete now. Let's check and play with our piano. I hope it won't be too much annoying. तो सबसे पहले हम लोग इसको कहाँ सेट करते हैं, एक मिनट, ओके देयर इज एरर, नहीं एरर नहीं है, तो हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं सेंस बजर के वायर को, ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, बिकॉज क्या हो रहा है, ओके समथिंग दिस इज़ रॉन्ग, ये डिले जो आ रहा है ना 500 मिलीसेकंड का, ये डिले हटा देता है। एन सीरियल प्रिंट तो अभी करना नहीं है, तो छोड़ो, ओके नो इट विल बी स्मूथ। Okay, so it was nice. I hope it was not too much. Let's decrease the sound of it, okay, then I should play. Okay, now it won't be too much annoying. ठीक है, it's kind of a digital version of Saregama, I guess. Okay, enough. I hope it will be much more awesome and melodious in when you make it with a real buzzer. Now I wanted to talk about something about buzzer. There are two type of buzzers in the market when you go and buy them. First is a passive buzzer and one is an active buzzer. Now in the active buzzer, inside there's a circuit which play a sound of 2 kilohertz from that buzzer, ठीक है। तो मतलब जब हम कनेक्ट करते हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो वो बजर से 2000 हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी निकलता है, दैट वो पीप बीप वाले बजर होते हैं ना, वो 2000 हर्ट्स वाली फ्रिक्वेंसी होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैसिव बजर। उस पैसिव बजर को अगर तुम लोग कनेक्ट करोगे ना पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, कुछ होगा ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वो पैसिव बजर होते हैं, तो उनको हमें स्क्वायर वेव देना पड़ता है, जो कि टोन फंक्शन से ही दे सकते हैं, ठीक है। उनको हमें रन करने के लिए स्क्वायर वेव देना पड़ता है, विच वी कैन गिव ओनली यूजिंग द टोन फंक्शन। तो टोन फंक्शन यूज़ करके ही वो बजर चलता है, एंड वो बजर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ होती है, बहुत ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लगती है। एंड जो बजर्स एक्टिव बजर होते हैं उसमें कैसा होगा ना, उसमें ऐसा लगेगा कि वो बजर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, तो उसमें से रिपल्स जैसा फील होता है, ऐसे पी 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 लाइक दिस वो बजर चलते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो एक बार ट्राई करके देखो, खुद समझेगा, ठीक है। बोथ बजर्स आर 5 to 10 रुपीज़ ओनली, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस डिफरेंस, बट वन इज़ पैसिव एंड वन इज़ एक्टिव, एंड दोनों सेम दिखते हैं। तो इफ़ यू आर बाइंग दैम, ओके, सी दैट, यू नो, पे अटेंशन टू वॉट यू आर बाइंग। ओके, वॉट शुड वी नेम दिस प्रोजेक्ट? अल्ट्रासोनिक पियानो। हम नाम लिखना हमेशा भूल जाते हैं, अल्ट्रासोनिक पियानो, okay. So I hope you have enjoyed this project, okay. I hope you have learned something from it. Keep exploring, keep learning. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye.